Welcome back, student, in my YouTube channel Account X-Ray. I am Santosh Misra, and student, we have already covered the parts of staffing, uh, just like meaning of staffing and human resource management, its definition and process of staffing. It is already covered, and after process of staffing, we read the recruitment and resources of the recruitment has two types, internal sources and external sources. And in previous video i I have discussed that the advantage of internal sources recruitment, and now in this video I will cover the further topics. Let's start our discussion. Limitation of internal sources. First limitation is the scope for induction of fresh talent is reduced. Student, when vacancies are filled through internal promotion, the scope for induction of fresh talent is reduced. The second is the employee may become lethargic, means lazy. Employee if they are sure of time bound promotion, so they become lazy. And the spirit of competition among the employee may be hampered. And in fourth limitation, frequent transfer of employee may often reduce the productivity of the organization. It is also limitation of the internal sources. तो स्टूडेंट्स क्या है, यदि हम इंटरनल सोर्सेज का यूज़ करते हैं तो उस टाइम में हमारे पास, चूँकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने एम्प्लॉय रहते हैं उन्हीं से हम अपना काम चलाते हैं, तो फ्रेश टैलेंट कोई बाहर से नहीं आ पाता है। एम्प्लॉय जो है वो थोड़े से आलसी हो जाएंगे, कंपीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपने अंदर कोई सुधार नहीं ला पाते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र जो होता है एम्प्लॉइयों का, वो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी रिड्यूस कर देता है। So now we will read external source of recruitment. What is the external source of recruitment? An enterprise has a tap external sources for various position, because all the vacancy cannot be filled through internal recruitment. So when the candidate from outside the organization are invited to fill the vacant job position, then it is known as external recruitment. So this is the main meaning and main concept behind the external sources of recruitment. So student, external sources has common method. First is direct recruitment. In direct recruitment, a notice is placed on the notice board of the enterprises, specifying the detail of the job available. In direct recruitment, जैसे क्या होता है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रीमाइसेस के बाहर एक सब कुछ नोटिस बोर्ड पे सब लगा देती है, और यहाँ पे आपको आना है, एक डेट भी उसमें डिसाइड हो जाता है कि किस दिन आप लोगों को आना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी रहती है। और वहाँ पे एम्प्लॉई जो अप्लीकेंट होते हैं वो वहाँ पहुँचते हैं और उनका फिर जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो ये जो मेथड है वो एक्चुअली जो थोड़े से अनस्किल्ड, मतलब से अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए, कैजुअल वैकेंसी के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है, उनको फुलफिल करने के लिए। तो ये चीज़ है। सेकंड इज कैजुअल कॉलर. कैजुअल कॉलर, many reputed business organization keep a database of
अनसॉलिसिटेड applicant in their office, मतलब those who applied in past। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि भाई रेपुटेटेड हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, एम्प्लॉय आते जाते हैं, और वो लोग जो है अप्लाई करते रहते हैं। तो इन लोगों का डेटाबेस जो है हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे बुला लेते हैं। अब थर्ड इज़ एडवर्टीजमेंट। देन एडवर्टीजमेंट तो आप जानते हैं एडवर्टीजमेंट में क्या है। आजकल एक मतलब एक वाइडर चॉइस जो है, जब ज़रूरत रहती है बहुत ढेर सारे लोगों की, ताकि हम उसमें से सबसे बेस्ट एम्प्लॉय को जो है चूज़ कर सकें, तो न्यूज़पेपर, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब के थ्रू हम लोग एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। और नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा आते हैं, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा आते हैं, और हम उसमें से बेस्ट को चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। Employment exchange run by the government are regarded as the good source of the recruitment for the unskilled and skilled operative job। एक्चुअली ये जो रोजगार कार्यालय होते हैं उनकी बात है, वहाँ पे लोग जाते हैं और अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो रोजगार कार्यालय में होता ये है कि वो अपना डेटाबेस थोड़ा सा उनका ठीक नहीं होता है, अब अप टू डेट नहीं रहता है, जिनका मिलता है वो उस काम के लिए नहीं सही रहते हैं। तो थोड़ी सी इसमें ड्रॉबैक है। तो लेकिन फिर भी ये एक प्रकार से बहुत ही सूटेबल है कि वहाँ से जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराए रहते हैं वहाँ से हम लोगों को ले लेते हैं। फिर फिफ्थ इज़ कैंपस रिक्रूटमेंट। कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल जॉब। तो इसमें क्या है कि कैंपस सिलेक्शन होता है, कंपनियां आती हैं, कॉलेजेस में आती हैं, और वहाँ पे जो है कैंपस रिक्रूटमेंट किया जाता है, और वहाँ से वो अपने जैसे अभी एग्ज़ाम कंप्लीट फोर्थ सेमेस्टर अभी होने वाला है, तभी जो है वो कैंपस सिलेक्शन करके चले जाते हैं। तो ये एक बहुत आजकल तो मॉडर्न अप्रोच है, ये बहुत कंपनियां इसको बहुत प्रेफर कर रही हैं। और फिफ्थ इज़ लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये भी अपने पास लेबरर्स को रखते हैं, और जब अनस्किल्ड वर्कर की शॉर्ट नोटिस पे हमको ज़रूरत रहती है तो हम इन कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट कर लेते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे टेलीविज़न पे एडवर्टाइज़ करके, ये एडवर्टाइजिंग में ही आ गया। वेब पब्लिशिंग करके, इंटरनेट तो आजकल बहुत ज़्यादा वो एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, तो वहाँ से जो लोग सर्च करते हैं, तो अभी आप naukri.com वगैरह बहुत कुछ देख सकते हैं, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को मिलती हैं। मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेस। मेरिट क्या है भाई? एक तो क्वालिफाइड पर्सनल्स मिल जाते हैं, और हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा रहती है, वाइडर चॉइस रहती है। फ्रेश टैलेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि नया जो जनरेशन होती है, नए टैलेंट आते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने में ये रहता है। और एक कम्पिटिटिव स्पिरिट रहती है। जो अभी के स्टाफ हैं वो ये नहीं सोचते हैं कि हमको तो अब आउटसाइडर से भी कम्पीट करना है, तो अपने आप को वो अपडेट करते रहते हैं। तो ये है। और लिमिटेशन क्या है? डिससेटिस्फैक्शन होती है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के बीच में। उनको ये लगता है कि जैसे आउटसाइड से जब ले लिया जाता है तो उनको एक प्रमोशन का चांस था जो कि उनसे हट गया, और ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। आप समझ सकते हैं कॉस्टली प्रोसेस कैसे है कि बहुत सारी पैसा इसमें लगता है एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, तो ये कॉस्टली प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, ज़्यादा टाइम लेता है। और इस तरीके से हमारा ये पूरा टोटल इट्स ऑल अबाउट द एक्सटर्नल सोर्सेज, लिमिटेशन, मेरिट एंड अदर मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल sources. Thank you student. In next video we will cover the selection. So okay.